Hello children, welcome to class 3 EVS, and today we are going to learn about water pollution and water supply. So let's look into our books. Water pollution. Various activities are responsible for contamination of water. इसका मतलब क्या होता है? कई तरह की क्रियाएं जिम्मेदार होती हैं पानी को इम्प्योर करने के लिए, उसे पोल्यूट करने के लिए. The contamination of water is called water pollution. और इसी इम्प्योरिटीज जो वाटर में आ जाती हैं, इसी की वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन. वाटर बिकम्स अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू वाटर पोल्यूशन. और इसी वजह से वाटर पोल्यूशन की वजह से हम इस पानी को नहीं पी पाते हैं. Some of the activities which pollute water are given below. और कुछ क्रियाएं जो मनुष्य के द्वारा की जाती हैं जिनकी वजह से पानी गंदा हो जाता है या पोल्यूट हो जाता है, वो क्या क्या है? Washing clothes and bathing in water bodies like rivers and lakes. नदियों में और झीलों में कपड़े धोना और नहाना. Throwing kitchen waste and waste from factories and garbage into water bodies. हमारी रसोई का कचरा, फैक्ट्रीज का कचरा सब कहाँ चला जाता है? नदियों में और झीलों में. Animals taking bath in rivers, lakes, etc. और जानवरों का नहाना किसमें? नदियों में और झीलों में. यही सब कारण है जिसकी वजह से पानी पोल्यूट हो जाता है और हमारे पीने लायक नहीं रह पाता. Now children, look into this image. What you can see that factories are throwing away their waste in water bodies, right? And not only that, the smoke pollution is also held by the factories. Factories क्या कर रही हैं? अपने कचरे को नदियों में, झीलों में डाल रही हैं और उनकी वजह से धुआं प्रदूषण भी हो रहा है जो एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूट कर रही है. Children, can you see in this image that a man is throwing a can from his car and the other man is throwing the garbage on the sea. The animals are dying near the sea and the sewerage line is also going in the sea. So this is all polluting the water. एक जना तो कैन फेंक रहा है, एक जना कचरा फेंक रहा है, जानवर भी नदी समुद्र के आसपास मर रहे हैं और सीवरेज लाइन भी इसमें जा रही है जिस वजह से हमारा पानी सारा प्रदूषित होता जा रहा है. Now children, in this image people are washing their clothes, they are bathing, they are urinating, and a van has come which is throwing away the garbage and a drain is coming out of the house. So this is all what? These are the activities which are polluting the water. क्या क्या हो रहा है? लोग अपने कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, यूरिनेट भी कर रहे हैं, एक घर में से नाली बाहर आ रही है, एक वैन खड़ी है जिसमें से कचरा फेंका जा रहा है. तो ये सब कारण है जिसकी वजह से पानी सारा प्रदूषित होता जा रहा है. डू यू नो Ganges is the most holy river and it is one of the most polluted also because people are doing all these activities in Ganga. So that is why it is the most polluted river today. Now children, it's time to answer. Write whether the following statements are true or false. यदि सही है वाक्य तो उसके आगे true लिखना है और यदि गलत है तो false. The contamination of water is called water pollution. मैंने बताया था आपको contamination means the action of making or being made impure. पानी को गंदा करना. So this is true. Then washing clothes in the water bodies pollutes water. Again पानी में यदि आप कपड़े धोगे तो वो गंदा ही होएगा ना. तो this is true. We should not throw kitchen waste from factories and garbage into water bodies. हमें ये सारी चीजें फेंकनी नहीं चाहिए. तो again this is true. Okay. Water supply. Ramu and Shamu are two friends. Ramu is preparing juice for Shamu. Shamu looks at the water and he wonders and asks, "Where do we get water flowing from the tap?" Ramu replies and said, "Water can be obtained from natural resources. The water is treated and then purified before it is distributed to make it safe for drinking. Water is very important in our daily life. We use water for cooking, drinking, bathing, washing, and cleaning." Examples of natural resources of water are lakes, rivers, and rainwater. The water which reaches our home comes from lakes and rivers. This water is purified before it reaches us because this water contains bacteria, algae, and other harmful chemicals which might be dangerous for our health. Water is directed from lakes or rivers to big purification plants. पानी को कहाँ भेज दिया जाता है? नदियों और झीलों में से
बड़े बड़े प्लांट्स में भेज दिया जाता है उनकी साफ सफाई के लिए। हियर वाटर इज प्योरिफाइड, यहाँ पर पानी को स्वच्छ बनाया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है। एंड कलेक्टेड इन बिग टैंक्स, और इनको बड़े बड़े टैंक्स में इकट्ठा किया जाता है। फ्रॉम दीज टैंक्स, अब इन टैंक्स से क्या किया जाता है? वाटर इज सप्लाइड टू द टैप्स इन आवर होम्स थ्रू पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के द्वारा इन पानी को हमारे घरों में पहुंचाया जाता है नल के द्वारा। द वाटर दैट रीचेज आवर होम्स इज नॉट क्लीन, जो पानी हमारे घरों में आता है वो साफ नहीं होता है। इट हैज टू बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, उसको हमें पीने के लिए साफ बनाना पड़ता है। इफ यू ड्रिंक वाटर दैट इज नॉट क्लीन, यदि हम गंदा पानी पिएंगे जो साफ नहीं है, वी मे गेट वाटर बॉर्न डिजीजेस, तो हमें पानी वाली डिजीजेस हो सकती हैं, लाइक कॉलेरा एंड जॉइंडिस, जैसे कि कॉलेरा और जॉइंडिस, ये पानी की बीमारियां हैं। वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग इट, हम पानी को साफ कैसे कर सकते हैं? उसे उबाल करके। बॉइलिंग द वाटर किल्स जर्म्स इन इट, क्योंकि पानी को उबालने से क्या होता है? उसके अंदर के जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। वाटर कैन ऑल्सो बी प्योरिफाइड बाय यूजिंग वाटर फिल्टर्स और वाटर प्योरीफाइज। आजकल तो आरओ का यूज में लिया जा रहा है, तो आरओ को हम घर में लगा करके हम पानी को साफ कर सकते हैं। फिल्टरिंग वाटर रिमूव्स इम्प्योरिटीज, क्योंकि पानी को साफ करके पीने से क्या होता है? उसके अंदर जो गंदगी होती है, जैसे कि सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी के कण और मिट्टी, वो सब खत्म हो जाती हैं। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। Fill in the blanks with the correct words. First, dash the water kills germs in it. क्या करने से पानी के अंदर जो germs होंगे वो मर जाएंगे, कीटाणु सारे मर जाएंगे? बॉईल करने से या उसको पॉल्यूट करने से? I think boiling. Then second one is dash is a waterborne disease. पानी वाली डिजीज कौन सी है? पानी की बीमारी ऊपर आया भी था ना अभी, कॉलेरा, राइट? क्योंकि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कॉलेरा होगा। So children, I hope you have followed all what I have taught you today. So please like and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon given below. Okay? See you tomorrow in the next video. Bye bye.